Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for English text for class 8 and this is lecture number 19. My dear students, today reading and explanation of Unit 2 Natural Beauty of Pakistan will be done. So kindly take out your books and open page number 20 for pre-reading questions. This is page number 20, reading comprehension, and we are discussing pre-reading questions. The first question we have, can you name some of the beautiful places of Pakistan? क्या आप पाकिस्तान के कुछ खूबसूरत मुकामात के नाम बता सकते हैं? पाकिस्तान में बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं और आपने उनके नाम बताने हैं. ओके. द नेक्स्ट वी हैव यू विजिटेड एनी ब्यूटीफुल प्लेस इन पाकिस्तान? क्या आपने कभी किसी खूबसूरत जगह का विज़िट किया है? तो आप इस यू कैन गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइक यस आई हैव विजिटेड अ ब्यूटीफुल प्लेस इन पाकिस्तान. हाँ, मैंने पाकिस्तान में खूबसूरत जगह का दौरा किया है. नो, आई हैव नॉट विजिटेड एनी ब्यूटीफुल प्लेस इन पाकिस्तान. नहीं, मैंने पाकिस्तान में किसी खूबसूरत जगह का दौरा नहीं किया है. ओके. एंड नेक्स्ट वी हैव विच प्लेस वुड यू लाइक टू विज़िट एंड वाई? आप कौन सी जगह को विज़िट करना पसंद करेंगे और क्यों? For example, if you want to go मरी, आप मरी जाना चाहते हैं, तो क्यों जाना चाहते हैं? तो आपने कहा भाई बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, कि वहाँ बर्फ़बारी होती है, इस वजह से मैं मरी जाना चाहता हूँ. इस तरीके से और भी प्लेसेस के बारे में आपने बताना है, और एक या दो. ओके. एंड द फोर्थ वन इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम you are going to read is My Blessed Beautiful Land. Which of the following things are you going to read about? जो पोम हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट पेज पर है, उसका टाइटल है My Blessed Beautiful Land, मेरी बाबरकत खूबसूरत सरज़मीन. तो उसमें हम इनमें से किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? Okay, the first is the crops that we grow here. फसल के बारे में, फसलों के बारे में जो पाकिस्तान में उगाई जाती हैं, या फिर ब्यूटीफुल क्लोथ्स ऑफ पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान के खूबसूरत ट्रेडिशनल लिबास, कपड़ों के बारे में बात करेंगे, या फिर द नेचुरल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में बात करेंगे, कुदरती खूबसूरती के बारे में बात करेंगे, या फिर द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान के खूबसूरत फूलों के बारे में बात करेंगे. और ये तो हमें पोएम पढ़कर ही पता चलेगा. ओके. नाउ टर्न द पेज फॉर द पोएम. ओके. My blessed beautiful land, and you know the methodology of reading. First I will do the model reading and you have to listen it carefully. Then I will do the choral reading, in which I will read the poem slowly line by line and you have to read after me. Then I will explain it for you. Okay? Now listen very carefully. My blessed beautiful land, in the north spellbinding scenes that astound, mighty Karakoram that's snow crowned, with Hindu Kush beauty all around, where warm and brave people are found. Oh my Lord, keep them all safe and sound. The sands of the Qaran desert brown, lofty mountains with precious stones found, and mines full of minerals underground, my land where fearless people abound. O my Lord, keep them all safe and sound.
Now you have to read after me, okay? अब आप मेरे बाद मैं line by line पढ़ूँगा और उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे मेरे साथ, all right? In the north, spellbinding scenes that astound, mighty Karakoram that is snow-crowned, with Hindu Kush beauty all around, where warm and brave people are found. O my Lord, keep them all safe and sound. The sands of the Quran desert brown, lofty mountains with precious stones found, and mines full of minerals underground, my land where fearless people abound. O my Lord, keep them all safe and sound. Now I am explaining stanza 1 and stanza 2. This poem has 4 stanzas and I am explaining the stanza 1 and stanza 2. In the first stanza, the poet is telling about 2 mountain ranges. The first one is mighty Karakoram, which is 28,251 feet high. And the second one is Hindu Kush, which is an 800 kilometer long mountain range that stretches through Afghanistan, from its center to northern Pakistan and into Tajikistan. And he's also telling that the people who live there are brave, are very brave. The poet prays to God to keep them safe and sound. बेटा जो पहला स्टेंजा है उसमें शायर ने पाकिस्तान की चौंका देने वाली, हैरत में डाल देने वाली कुदरती चीज़ों के बारे में बताया है, जिसमें 2 पहाड़ का उसने ज़िक्र किया, एक कराकरम और दूसरा हिंदू कुश। कराकरम पहाड़ के बारे में बताते हैं कि वो बर्फ़ से ढकी हुई उसकी चोटी होती है और हिंदू कुश के आसपास बहुत ज़्यादा खूबसूरती और बहुत ज़्यादा अच्छे नज़ारा देखने को मिलता है, और जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो बहुत बहादुर और शुजाअतमंद होते हैं, ये उनकी क्वालिटी बताई गई है। और आखिर में वो ये दुआ करता है कि ए अल्लाह, ये तमाम चीज़ों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। ऑलराइट, इन द सेकेंड स्टेंजा the poet tells us about the Qaran desert, which is a sandy and mountainous desert situated in Balochistan province. और दूसरे स्टेंजा में वो हमें Qaran desert के बारे में बताता है जो कि रेत पर मुश्तमिल है और बलूचिस्तान सूबे में वाक़ है। He is also telling that in these mountains all the minerals and precious stones like emerald, ruby, zircon, topaz and diamonds are found. और साथ साथ हमें वो ये भी बताता है कि इनके अंदर तमाम मादनियात और बहुत ही कीमती पत्थर मिलते हैं, जिसके अंदर एमरल्ड है, रूबी है, ज़िरकोन है, डायमंड्स हैं। ये तमाम चीज़ें इन पहाड़ों से और ये डेज़र्ट से, ये सहरा से हमें मिलती हैं। और जो इस जगह के लोग हैं, द पीपल ऑफ दिस रीजन आर फेयरलेस, ये भी बेबाक हैं, बिल्कुल बेखौफ। और वो इन तमाम चीज़ों के लिए भी आखिर में दुआ करता है कि अल्लाह इन तमाम चीज़ों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। ओ माई लॉर्ड, कीप देम ऑल सेफ एंड साउंड। ओके, नाउ वी विल रीड स्टेंजा 3 एंड स्टेंजा 4, देन आई विल एक्सप्लेन देम बोथ। द थर्ड स्टेंजा इज fertile plains, field of grains all around, where meet 5 mighty rivers renowned, a land of tales and legends profound,
where simple people work the year round. O my Lord, keep them all safe and sound. The Indus Delta spread all around, far from the Mohenjo-daro mound, where echoes of ancient times resound, and sincere and resourceful people abound. O my Lord, keep them all safe and sound. Fertile plains, field of grain all around. Where meet 5 mighty rivers renowned. A land of tales and legends profound, where simple people work the year round. O my Lord, keep them all safe and sound. The Indus Delta spread all around, far from the Mohenjo-daro mound, where echoes of ancient times resound, and sincere and resourceful people abound. O my Lord, keep them all safe and sound. In stanza 3, the poet tells us about the fertile plains of Pakistan in Punjab, where wheat, rice, maize, barley, etc. are cultivated. तो बेटा जो थर्ड स्टेंजा है उसमें शायर हमें ज़रख़ेज़ ज़मीन के बारे में बता रहा है पाकिस्तान की, जहाँ पर गंदम, चावल, मकई, जौ, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों की काश्तकारी की जाती है. ही इज़ ऑल्सो टेलिंग अस अबाउट द 5 माइटी रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के 5 बड़े दरियाओं के नाम के बारे में वो हमें बता रहा है इसमें, और उनसे साथ जुड़ी हुई कहानियों के बारे में बता रहा है. जैसे इसमें दे आर इंडस, झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज, ये 5 दरियाओं के नाम हैं. The poet says, this is the land of profound stories where people work for the whole year. और इसके साथ बहुत सारी दास्तानें और बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, और यहाँ के लोगों की क्वालिटी बता रहा है कि बहुत सिंपल होते हैं और जो सारा साल वहाँ पे मेहनत करते हैं और काम करते हैं, और आखिर में इन तमाम चीज़ों की हिफ्ज़ व अमान के लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह इन तमाम चीज़ों को अपनी अमान में रखना. इन द 4th stanza, the poet tells us about the Indus Delta and the Mohenjo-daro, the mound of sand. It's an ancient Indus Valley civilization city. और जो चौथा स्टेंजा है इसके अंदर इंडस डेल्टा के बारे में बताता है, मोहिंजो-दड़ो के बारे में बता रहा है, जो कि बहुत ही पुराना और क़दीम इंडस वैली का शहर हुआ करता था. और ये कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1920 में, 1920 में, और ये पाकिस्तान में सिंध के सूबे में वाक़ है. और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सिंसेर हैं, यानी कि मुखलिस हैं, और रिसोर्सफुल थे, यानी कि बावसाइल लोग थे, और इन तमाम चीज़ों के लिए भी वो आखिर में दुआ करता है. सो ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल एंड इन्जॉयड द पोम. और इसमें कुछ ना कुछ हर स्टेंजा में कुछ ख़ास बात है. जैसे इसने फर्स्ट स्टेंजा के अंदर मैंने आपको बताया कि माउंटेन्स के बारे में बात करी और वहाँ के लोगों के बारे में 2 क्वालिटीज़ बताई कि दे आर वार्म एंड ब्रेव, ठीक है. और सेकंड स्टेंजा के अंदर डेजर्ट की बात करी, और किस चीज़ की बात करी? सहरा की बात करी, और वहाँ से और जो ख़ास कीमती पत्थर हैं उनकी बात करी. इसके बाद मिनरल्स, मादनियात की बात करी, और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्वालिटी बताई कि दे आर फियरलेस पीपल. 3 क्वालिटीज़ हो गई अब तक. फर्स्ट स्टेंजा में 2 वार्म एंड ब्रेव, और सेकेंड स्टेंजा में 1 फियरलेस.
ओके इसी तरह जो थर्ड स्टेंजा है उसमें फर्टाइल प्लेन्स यानी ज़रख़ेज़ ज़मीन के बारे में बताया, 5 दरियाओं के बारे में बताया और उसके साथ जुड़ी हुई दास्तानों और कहानियों के बारे में बताया और यहाँ के लोगों की क्वालिटी ये बताई कि दे आर वेरी सिंपल पीपल। ठीक है, और लास्ट स्टेंजा के अंदर इंडस जलसा, मोहनजोदड़ो और उसके साथ पुरानी जो वहाँ के जो खंडरात हैं और जो वहाँ की जो कहानियाँ हैं उसके बारे में, और साथ में ये बताया कि इनके जो लोग थे वो बड़े सिंसियर थे, मुखलिस थे और बड़े रिसोर्सफुल, बड़े बावसाइल लोग थे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नाउ टेक आउट योर डायरीज़ फॉर द होमवर्क। And your homework is read the poem My Blessed Beautiful Land on page numbers 21. That's all for today. We will meet inshallah in the next class. Take very good care of yourself. Assalamu alaikum.